Hello everyone, good morning. Welcome me back in the topic lines and angles. Today we are working on a few difficult concepts at the same time theorems that what we have done yesterday, those we are going to revise and some questions based on those theorems. First of all, these questions which we skipped yesterday, we'll be completing it now. Let me just continue. In case if two lines are parallel, just imagine, and if there is a transversal, we know that alternate angles are equal. Okay? Now exactly opposite of this statement I will say, if two lines and there is one transversal and if alternate angles are equal, here 60 degree and this is also 60, then we say these lines are parallel to. Okay, so exactly opposite of the statement as we have done before this, we are going to use now. So this particular concept which makes the line parallel, we are going to use when two angles are equal. It's not only about alternate angle. I just gave a simple example about alternate angle. Even the same thing is true for the corresponding angle. So imagine if there is a triangle in this manner and this angle is equals to this angle, then this two lines are parallel to each other. Okay, so this is what a very simple and easy concept I told you. How to write that, how to present it, everything we'll discuss when we solve the example. Let's understand the question. The question says that if PQ is parallel to AB, check it out in the diagram. PQ is given parallel to RS, and you are expected to prove AB is parallel to CD. This is AB and this is CD. These are also parallel, it is asked to prove. Of course, it is given that these angles are equal. I mean to say they are bisectors of each other. Normally, whenever we see the bisector, we say this is A, and here is B, right? We do that, isn't it? Hope you remember that. So, chalo, anyway, we'll start working on it. So, सबसे पहले I know that PQ is parallel to RS. If PQ is parallel to RS, I'm very sure that you know that the angle PAC is equals to angle ACS. ACS, right? How much is PAC? It is 2A is equals to 2B. Taking half of both the side or 2 to get cancelled, I can say A is equals to B. Isn't it A is this angle and B is this angle? They are equal. That means I mean to say BAC is equals to angle DCA. So now if I erase other part, don't you think कि ये एक alternate angle ही है जो हमने अभी भी देखा? याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? Alternate angle ही है ना? A and B alternate angle है, and वो कैसे equal है? When can alternate angle be equal? When AB is parallel to CD. This is what the basic idea is. Clear? Getting it? इसके लिए रीजन लिखते हैं हम लोग. जैसे एंगल इक्वल के लिए हम लोग लिखते हैं अल्टरनेट एंगल, वैसे इसके लिए रीजन लिखते हैं कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल. कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, उल्टा. कॉन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, अल्टरनेट एंगल के उल्टा. तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो लाइन्स आर पैरेलल. दिस इज कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल. ठीक है, इज इट डन? क्लियर? गेटिंग इट? होप यू अंडरस्टूड. इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसको विदाउट, नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि विदाउट ए एंड बी भी इसको सॉल्व करें, तो मैं विदाउट ए एंड बी भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ. तो चलो ठीक से देखते हैं फिर से. चलो, तो ये तो क्लियर हो गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना. आई गो फॉर हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी एस. दैट मीन्स आई एम डूइंग हाफ ऑफ दिस एंगल. पी ए सी का हाफ क्या होगा? इजंट इट ये एंगल होगा. दैट मीन्स बी ए सी. एंड ए सी एस का एंगल हाफ क्या होगा? डी सी ए. एंगल डी सी ए हो गया. तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया. तो ये तो अल्टरनेट एंगल है. तो इजंट इट दे आर सपोज टू बी पैरेलल लाइंस. ओके, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस हैज टू बी पैरेलल. सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. दैट्स इट. रीजन वही होगा, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम, या फिर जस्ट कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, डन. इतना यहाँ तक समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? यहाँ पे रीजन होगा अल्टरनेट एंगल.
है ना, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल इटसेल्फ दे आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। इससे एग्जैक्टली क्वेश्चन अपोजिट भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन केस इफ यू वांट टू सी, आई जस्ट शो यू। ये क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन आई राइट हियर, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे देखो। पहले वही ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है तो वो यूज़ करते हैं। अगर ए बी एंड सी डी पैरेलल हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए बी एंड सी डी पैरेलल हो, ये जो ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी अल्टरनेट एंगल। अभी बी ए सी का पूरा एंगल कैसे कर सकता हूँ मैं, डबल ऑफ दैट, है ना, उसके डबल होगा। तो 2 टाइम्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी डी। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, अपना यूक्लिड ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। तो बी ए सी का डबल क्या होगा, पी ए सी। डायग्राम में देख लो, देखो बी ए सी का डबल क्या होगा, पी ए सी। एंड ए सी डी, देखो ए सी डी का डबल क्या होगा, ए सी एस। ओके, अभी व्हेन कैन दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल, ये भी अल्टरनेट है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस हो जाएगा। एंड रीजन होगा कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। बहुत ही सिंपल है, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद रह जाएगा ना। क्लियर, कैन यू डू इट, बोथ द क्वेश्चंस करो इफ़ यू वांट। ऐसे करो, इसको 10A कर दो जो एक्चुअल क्वेश्चन है, और इसको 10B कर दो जो दूसरा क्वेश्चन है, एंड दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दो। डायग्राम तो वही रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर, कैन यू डू दैट। ये रहा आपका 10A और वो है आपका 10B। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। डन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा वियर्ड टाइप है। आर ओ एस इज इक्वल टू, ऐसे कुछ तो हमें प्रूव करना है। जब भी ऐसे कुछ वियर्ड जैसे प्रूव करना होता है तो हम लोग 2 वे से कर सकते हैं। एल एच एस आर एच एस वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू, या फिर एल एच एस आर ओ एस है विच इज़ वेरी स्मॉल, तो हम लोग आर एच एस की जगह, एल एच एस की जगह पे आर एच एस लेते हैं। व्हाट इज़ आर एच एस, राइट हैंड साइड, जो भी इक्वल टू दिया हुआ है उसका एक साइड हम लोग लेंगे। तो क्या है वो एक साइड, आर एच एस है हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ऐसे क्या करो, ले लो डायरेक्टली और फिर रिप्लेस करना शुरू कर दो, दैट्स इट। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है आर ओ एस, तो इसकी जगह पे हमें क्या क्या लाते जाना है, आर ओ एस लाते जाना है, बस दैट्स इट। ठीक है, वो कैसे लाना है वो हम लोग चेक करेंगे अभी। सबसे पहली बात, डायग्राम में हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। आर ओ क्यू 90 दिया हुआ है, तो आर ओ पी भी 90 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी एक जगह पे एक साइड में 90 दिया हुआ रहता है तो दूसरा वाला भी 90 ही होता है। ओके, एंड दैट नॉर्मली वी मिस, वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्यू ओ एस देखते हैं, क्यू ओ एस। ओके, तो क्यू ओ एस को मैं आर ओ एस में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, ये चेक करते हैं। कर सकता हूँ, कैसे, 90 प्लस आर ओ एस, तो ये हो जाएगा 90 मतलब आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस माइनस ऑफ, ऐसे करेंगे ना। अभी पी ओ एस को रिप्लेस होता है क्या देखते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो है अभी क्या दिया है, क्या है मेरे पास, पी ओ एस, ये रहा पी ओ एस। पी ओ एस में आर ओ एस कैसे आ सकता है, आप बोलोगे तो आएगा ही नहीं, 100% नहीं आएगा। आएगा, कैसे आएगा देखो, पी ओ एस इज इक्वल्स टू, देखो दिस कंप्लीट माइनस दिस, मतलब ये माइनस ये विल बी माई पी ओ एस। देख लो ठीक से, दिस कंप्लीट माइनस दिस इज माई पी ओ एस। यही है, हो गया, आंसर हो गया। वंस यू डू दैट आंसर इज डन। ठीक से बस देख लो इस चीज़ को। देखो मैंने किया क्या, हर एक की जगह पे आर ओ एस लाने की कोशिश किया और कुछ नहीं किया है, बस दैट्स इट, उतना ही किया है एंड आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर। तो वही लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल का सब्ट्रैक्शन, एंगल का एडिशन यू हैव टू नो। इसलिए मैंने वो यूक्लिड ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक लिया था ना, वो पर्पसली मैंने वो लिया था क्योंकि वो एंगल एडिशन, एंगल सब्ट्रैक्शन आप ठीक से समझ पाओ। ठीक है, एनीवे
फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और एक बार इसको समझाने की कोशिश करूँगा, नो प्रॉब्लम। चलो अभी देखते हैं POS की जगह पे। देखो POS जो है दिख रहा है आपको, POS को मैं क्या करूँगा, ROS लाने की कोशिश कर रहा हूँ। POS की जगह पे मैं ROS लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तो रिलेटेड नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, POS जो है वो मैंने क्या किया, ROP माइनस ROS किया। ठीक है, तो एंगल ROP माइनस एंगल ROS। ब्रैकेट क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये ब्रैकेट होना चाहिए जब कोई भी माइनस साइन आता है, सो दैट दिस माइनस साइन विल चेंज द साइन इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 ROQ तो 90 है, दिख रहा है आपको, 90 प्लस एंगल ROS माइनस ROP क्या है, अगेन 90 है, देखो यहाँ पे ROP 90 है, तो 90 प्लस एंगल ROS। अब ये प्लस कैसे हो गया, दिस माइनस साइन चेंजिंग दिस साइन। ठीक है, 90 माइनस 90 गेट कैंसिल, ROS प्लस ROS हो जाएगा 2 ROS, सो 1/2 इंटू 2 टाइम्स एंगल ROS, 2 गेट कैंसिल, एंगल ROS इज द आंसर एंड विच इज़ माई LHS। देखो समझ में आ रहा है, खुद से ट्राई करो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिख रहा है ना आपको, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, डायरेक्टली। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझने की, थोड़ा समझने की कोशिश करो, टॉपिक खत्म हो गया अपना यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे वो टॉपिक, ये जो टॉपिक चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम न्यू टॉपिक, मतलब ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट भी इसी में लिया है, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। ठीक है, और वो 1-2 क्वेश्चन लेके मैं वो स्टॉप कर रहा हूँ, एंड हम लोग क्विकली साइंस भी ले रहे हैं। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, डोंट वरी, लेकिन खुद से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, डिड यू गेट दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ट्रायंगल में लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब तक के लिए बस इतना ही है, टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं हम लोग। वी हैव फिनिश द टॉपिक। कल हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो भी एक्सरसाइजेस हैं। एज सुन एज वी फिनिश कोई भी एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, तो एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद साइंस का एक टॉपिक लेते हैं। ठीक है, डन, यहाँ तक रुक जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन खुद से करना ज़रूर एंड टॉपिक को कंप्लीट करो। इट वॉज अ गुड टॉपिक, इजंट इट? वेरी नाइस, वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।